Hello everyone, this is Sakshi Agarwal from Malerkotla. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So आज इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ. ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 16 ਫੈਬ ਨੂੰ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ. ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ. ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ. ਦ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਅ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਜ਼ 8500. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 8500. ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਓਕੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8500. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਦ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ 7 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10000 ਰੁਪੀਜ਼. ਸੋ ਆਪਾਂ 7 ਦੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10000. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ 7800. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਟ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਵਰਕਰਸ ਹੈ. ਓਕੇ ਸੋ ਐਕਸ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7800. ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. 7 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 7 + x ਆਣਗੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 7 + x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਉਰੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ. ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ x ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ a, y ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ b. ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ x ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ x × a + y × b ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ x + y. ਸੋ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ. ਓਕੇ ਸੋ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 7 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ 7 × 10000 ਓਕੇ ਪਲੱਸ x × 7800 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ 7 + x. ਓਕੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ 8500. ਸੋ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਰੇ 15 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਕਰਨੇ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 7 + x. ਓਕੇ ਸੋ 7 + 15 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 22. ਸੋ 22 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. 72% of students of a certain class took biology and 44 took mathematics. 72% students हैं किसी क्लास दे उन्होंने biology लिती हुई है. सो biology किन्ने ने लिती हुई है 72% ने. ओके ते mathematics किन्ने ने लिता हुआ है 44% ने. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both then total number of student ਦੱਸਣੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਓਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਥ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ 40. ਓਕੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਐਂਡ 40 took both then total number of students ਦੱਸਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 100%. ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੈਟਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗੂਗਾ. ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A + B -
ए इंटरसैक्शन बी। ए इंटरसैक्शन बी मीनस जिहड़ा कि चीज़ दोनों च कॉमन है। ओके हुण देखो इत्थे आपां की लिखांगे ए यूनीअन बी नूं आपां की बोलांगे कि टोटल स्टूडेंट्स किन्ने आ, टोटल स्टूडेंट्स किहदे कोल आउणगे, ए अपने कोल लै लैंदे कि बायोलॉजी किन्ने स्टूडेंट्स ने लिती हुई है, तो बी लै लैंदे आ मैथमैटिक्स किन्ने ने लिती हुई है। ओके हुण देखो ए दे विच आपां किन्नी वैल्यू भरांगे 72x। हुण देखो उरे 72x किवें आया, क्योंकि आप इत्थे अज्यूम करते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स किन्ने ने 100x, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है तो आप 100x लै लिया। ओके हुण बायोलॉजी का किवें कड्डांगे, बायोलॉजी 72% दिता होया है, सो 72 इंटू 100, सो 100 नाल 100 कैंसल हो जू तो 72x आ गया बायोलॉजी का। तो सिमिलरली मैथमैटिक्स का कितना आ जाऊगा 44x। ओके माइनस 40, क्योंकि अपने को इंटरसैक्शन च इन्ना गिवन है तो इत्थे टोटल की बजाय आप कितना लिखांगे 100x। ओके सो जो तुसी 72x प्लस 44x नू प्लस करोगे कितना आ जाऊगा 116x माइनस 40 इक्वल्स टू 100x। ओके हुण इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जूगी, ये आप नैगेटिव साइन इग्नोर करांगे। सो इत्थों अपने को x की वैल्यू कितनी आई 40 डिवाइड बाय 16, इत्थे नूं काट दिए 10 4। ओके इत्थे कितना आ गया 5 2, सो 5 डिवाइड बाय 2। हुण टोटल स्टूडेंट्स करने, टोटल स्टूडेंट्स किन्ने आप लेट किते सी 100x, क्योंकि नंबर च आप कन्वर्ट करना ना परसेंटेज नूं। सो 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। सो 2 नाल जो 100 नूं कट्टिया कितना हुंदा 50, सो 50 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 250, आंसर आ गया। सो आंसर क्या आया सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, two numbers are in ratio 7:11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3. The smaller number is। हुण अपने को दो नंबर रेशो च दिते हैं तो आप इहदे नाल कोई भी कांस्टेंट जिहड़ा वैल्यू है वो अज्यूम कर लेने, बिकॉज रेशो च दिता होया है। ओके 7:11 नूं अगर मैं 7x 11x लिख दा, ठीक है, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू x नाल x दा कैंसल ही हो जू तो अल्टीमेटली वो 7:11 ही बन जू। सो उरे मैं की लिख सकती हूँ कि जिहड़े टू नंबर्स है मेरे वो किहड़े ने 7x ते सैकेंड है 11x। ओके हुण 7x ते 11x एवें लिख लिया, उन्हें क्वेश्चन दे विच नैक्सट कंडीशन की दिती है, इफ 7 इज एडिड टू ईच ऑफ द नंबर, मतलब आप दोनों 7 ऐड किया, सो 7 इधर भी ऐड किया तो 7 इत्थे भी ऐड किया। सो रेशो किहदे कोल हो जू 2:3 दे। ओके सो 3 नूं इन्ना मल्टीप्लाई करो इत्थे कितना होगा 21x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 नाल ए वाली टर्म नूं मल्टीप्लाई करो 22x प्लस 14। ओके जो तुम ये क्वेश्चन नूं सॉल्व करोगे तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाऊगी तुहाडे कोल 7। सो ये इक्वेशन नूं सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आई 7। ओके उन्हें की पूछा स्मॉलर नंबर, इन्हां दोनों चो स्मॉलर नंबर किहड़ा आ वाला है, सो स्मॉलर नंबर 7, x की वैल्यू 7, सो स्मॉलर नंबर कितना आया 49। अगर लार्जर नंबर पूछता इत्थे की करदे 11 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई कर देंदे तो कितना आंदा 77। ओके सो हुण नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस 240 ईच, on one he gained 20% and on other he lost 20%. Find the gain or loss percent in the transaction। हुणे बेसिकली प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आया हुआ है। ओके सो हुण देखो उन्हें की किया कि परसन ने 2 वॉच नूं बेचा, 2 वॉच उन्हें 240 दी बेची, ठीक है, मीनस एक वॉच का प्राइस कितना 240, उसियां 2 वॉच बेचिया उन्हें, एक तो उन्होंने 20% का गेन होया तो दूजी तो उन्होंने 20% का लॉस होया, तो कढ़ना है कि ये पूरी ट्रांजैक्शन दे विच उन्होंने गेन होया या लॉस होया। हुण इहदे विच 2 केस बननगे, सब तो पहला केस 1, ओके तो इत्थे लिखते हैं केस 2। पहला केस आप लै लिया गेन वाला जिहदे विच 20% गेन होया, सैकेंड लै लिया केस लॉस वाला जिहदे विच उन्होंने 20% का लॉस होया। ओके हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 240, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, मीनस अगर प्रॉफिट होगा तो इतने प्लस लिखांगे, अगर लॉस होगा तो माइनस लिखांगे, डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यूज करांगे। ओके हुण प्रॉफिट वाले केस च फॉर्मूला किवें आऊगा अपना, SP दिता है 240 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट वाला केस लै रहे हैं, सो 100 प्लस 20 कितना होंदा 120, सो इत्थे सीधा ही लिख देने 120
डिवाइड बाय 100 इंटू CP आप फाइंड करना है। ओके, इनू CP1 ले लो। सो जो तुम इनू सॉल्व करोगे तो थोड़े को इतने CP की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, CP1 की कितनी वैल्यू आई 200 रुपीज़। ओके, सो सैकेंड सॉल्व करो। जो सैकेंड केस सॉल्व किया था कि 240 इज इक्वल टू 100 चो 20 माइनस किते बिकॉज लॉस है। सो कितना आया 80 डिवाइड बाय 100 इंटू CP2। ओके, ये कॉस्ट प्राइस 2 लै लो, लैट कर लिया आप। सो इनू कट्टो, इतने 8 3s आ। सो CP2 की वैल्यू कितनी आई 300 रुपीज़। ओके, सो CP1 ते CP2 आ गया। हुण अगर आप ये टोटल SP कढ़ीए, टोटल SP मीनस 240 प्लस 240, ठीक है, क्योंकि दो अपने को वॉचिज है ना। सो 240 प्लस 240 कितना होया अपने को 480 रुपीज़। ओके, तो अगर आप टोटल CP कढ़ीए मीन CP1 ते CP2 नू प्लस करता। सो 300 प्लस 200 कितना हो गया 500। हुण आपां नू नज़र आ रहा है कि जिहड़ी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है सैलिंग प्राइस तो, बिकॉज आपां नू पूरा ट्रांजैक्शन उन्हें पूछा है ना। सो आप पूरा SP ते CP कढ़ लिया। सो हुण अपने को ये लॉस कितना आया 500 चो 480 नू माइनस किते कितना आ गया 20 का लॉस आ गया। ओके, हुण लॉस परसेंट कड्डो की हुंदा लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला होंगे ना। सो 2 zeros नू इन्हां कटता, ठीक है, 5 4s 20। सो ये क्या आ गया अपने को लॉस होया कितना 4% का। जिन्होंने नहीं पता लॉस का फॉर्मूला इत्थे मैं लिख देनी है। जिहड़ा लॉस परसेंट हुंदा वो किहदे कोल हुंदा लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। इत्थे यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा D। सो नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे एक शॉर्टकट भी होंगे बट लॉन्ग मैथड नाल इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज कई बार आप शॉर्टकट्स भूल जाते हैं। सो नैक्सट हूँ अपने को क्वेश्चन है एट वट रेट % पर एनम विल द इंटरस्ट ऑन 550 बी 66 इन 3 years। मतलब जो इतने 550 दिता हुआ प्रिंसीपल दिता हुआ है, अपने रेट दसना है, ठीक है, कि जोड़ा 550 ते अगर 66 अपने को इंटरस्ट आ रहा है 3 साल दे विच, तो रेट ऑफ इंटरस्ट कितना सी। सो 66 इतने अपने को सिंपल इंटरस्ट है तो टाइम दिता हुआ है 3 years। सो अपन पता है सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। उरे रेट ऑफ इंटरस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपल इंटरस्ट कितना है 66, प्रिंसीपल की वैल्यू कितनी है 550 इंटू R की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइम दिता है 3 years, डिवाइड कर दो 100 नाल। सो 0 नाल 0 कैंसल करता, इतने 5 6 11 ते कट किया। ओके, सो 5 2s 10, ओके, 3 2s 6। सो रेट ऑफ इंटरस्ट की वैल्यू कितनी आई 4%। सो आंसर क्या होगा A। ओके, दैन नैक्सट क्वेश्चन है। हुण जिहड़ा ये वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली अपने को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete the work in 10 days। तो आप दसना 20 women किन्ने days कंप्लीट करनगियां वर्क। ओके, हुण देखो ये उन्हें की क्या कि 4 men प्लस 6 women जिहड़ियां ने वो काम कंप्लीट किन्ने च कर दियां 8 days, ठीक है, तो 3 men प्लस 7 women किन्ने दिनां च कर दियां 10। हुण ये आपां मैन नू एलिमिनेट करते हैं, किवें करांगे। अगर मैं ये वाली इक्वेशन नू 3 नाल मल्टीप्लाई करदा तो इनू 4 नाल मल्टीप्लाई करदा। सो मेरे को की बनू 4 3s 12 M, ओके, प्लस 6 3s 18 W इक्वल्स टू 8 3s 24, ओके, 4 3s 12 M प्लस 7 4s 28 इक्वल्स टू 40। सो इनू सबट्रैक्ट किया जो इक्वेशन उपर वाली इक्वेशन। सो ये तो कैंसल हो गया। ओके, 28 चो 18 नू माइनस किया कि -10। ओके, तो 40 चो 24 नू माइनस किया कि -16। सो W की वैल्यू कितनी आई 16/10, ठीक है। हुण अपने को किन्ने का पूछा हुआ है 20 विमेन का पूछा है। सो 20 W की वैल्यू कितनी आऊगी 20 नू मल्टीप्लाई कर दो 16/10 नाल। ओके, सो 16 2 का कितना होंगे 32 days। सो यही अपना आंसर है B। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन देखो। हुण ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये बेसिकली अपने को टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है।
If Suresh goes from his home to office at 16 km/h, he reaches the office 5 minutes late. If he walks at 20 km/h, he reaches 10 minutes earlier than the office time. Find the distance of his office from his house. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ 16 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ 20 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਦੋ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, S1 × S2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। S1 - S2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ S2 - S1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ T1 - T2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, T2 - T1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਟੂ S2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ S1 ਚੋਂ S2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 16 - 20 - 4 ਮਾਈਨਸ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ 4 ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ T ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 16 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ T+5 ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 20 hours/km ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, 20 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ T-10 ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ T1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, T ਨਾਲ T ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ 5 - - +10 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਸ। ਓਕੇ, ਸੋ T1 - T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 60 ਮਿੰਟਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ 1 / 60 ਆਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਸੋ 15/60 ਆਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ km/h 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 60 ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਸੋ 20 ਨਾਲ 60 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਤੇ। ਓਕੇ, ਤੇ 4 × 16, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ 5 ਤੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਆਵਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ B। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A train 300 meter long is running at a speed of 25 meter per second. It will cross a bridge of 200 meter length in। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 300 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗੀ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਪਲੱਸ ਲੈਂਥ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜ। ਓਕੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय स्पीड ऑफ ट्रेन। सो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी गिवन है 300 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज कितना गिवन है 200 मीटर्स डिवाइड बाय स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। सो 500 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੋ ਆंसर ਕੀ ਆਇਆ C। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 17 19 21 23 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਬਣ ਰਿਹਾ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21, 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮੀਨਸ 2 2 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ 32 29 26 ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਰੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ 32 ਤੇ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਚ 3 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 29 ਤੋਂ 26 ਤੇ ਗਏ 3 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ।
सो 26 चो जो 3 माइनस करांगे कितना होगा 23। सो आंसर क्या आया सी। जो भी थोड़े कोल कुछ ऐसी टर्म दिती हो ना तो दो टर्म्स आप फाइंड करनिया हमेशा दो सीरीज होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदना स्टार्ट walking towards east and after covering a distance of 20 meters she turns left and runs for 15 meters. She then turns to her right and moves 25 meters. From there she again turns right and walk for 15 meters. How far is she from the starting point? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਉਹ डिस्टेंस चैप्टर चो है तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेलिस्ट वीडियो भी मिल जूगी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ओके। ਹੁਣ देखो उन्हें की क्या है सब तो पहले आप डायरैक्शंस देखते होंगे नॉर्थ दैन साउथ इधर ही साइड ईस्ट ओके इधर वैसट। हुण वंदना ने ईस्ट वल जाना स्टार्ट किया अगर वो इत्थे खड़ी है ईस्ट वल गई कितना उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटरस 20 मीटर ट्रैवल करने तो बाद अपने लैफ्ट वाली साइड मुड़ गई ठीक है तो उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 मीटरस। हमेशा याद रखो अगर लैफ्ट डायरैक्शन दिता है तो मीनस आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस तरीके नाल ओके। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मीनस उल्टी क्लॉक एवं घूमती है ना अगर इधर 12 है इधर 9 है मीनस 12 तो 9 जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं। अगर अपने को राइट डायरैक्शन दिता होंगे तो आप हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं ओके। सो ये चीज़ थोड़ी याद रखियो। हुन 15 मीटर गई शी दैन टर्न्स टू हर राइट एंड मूव 25 मीटर। हुन राइट वल गई ओह हुन राइट मीनस क्लॉकवाइज जाने ओके। सो राइट गई कितना 25 मीटर। फ्रॉम हेयर शी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 15 मीटर्स। हुण इत्थों फिर उन्हें राइट टर्न लिता तो 15 मीटर्स उन्हें वॉक किया ओके। दैन हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अपने स्टार्टिंग पॉइंट तो कितना दूर है। हुण इत्थों चली सी अगर मैं पॉइंट ए लै ला तो पहुँच कित्थे गई उरे बी ते तो कितना डिस्टेंस है ए ते बी दे विच 20 आ है तो 25 आ है मीनस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 25 ओके। सो कि कोल आया 45 मीटर्स। सो आंसर क्या होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये है इन अ फैमिली ए इज फादर ऑफ एक्स बी इज मदर ऑफ वाई द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। हुण जिहड़ा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर नाल बिलोंग करता है तो ब्लड रिलेशन चैप्टर उपर भी तुहानूं वीडियोज़ मिल जाएंगे चैनल उपर रीजनिंग की प्लेलिस्ट जाओ उत्थे सारी वीडियोज़ अवेलेबल है ओके। हुण उन्हें क्या है कि कोई फैमिली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स फादर है ए दा। सो एक्स ਆਪਾਂ सर्कल अज्यूम कर लिया मेल दे लई ओके ते ट्रायंगल अज्यूम करांगे फीमेल दे लई। सो ए की है फादर किहदा एक्स दा। नैक्सट उन्हें की कंडीशन दी हुई है बी मदर है वाई दी। सो इत्थे बी ड्रॉ कर लिया मदर है किहदी वाई दी ठीक है। नैक्सट उन्हें की किया द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। हुण आपां नूं इत्थे वाई का भी जेंडर पता लग गया कि वाई जो है वो सिस्टर है किहदी एक्स ते जेड दी ओके। मीनस इत्थों ये भी पता लग गया ए ते भी हसबैंड वाइफ है बिकॉज ए फादर है एक्स का तो बी मदर है वाई दी ते दोनों नूं दस्सिया है कि जिहड़ा एक्स ते वाई है सॉरी जिहड़ी वाई है वो सिस्टर है एक्स ते जेड दी। सो आप इत्थों ये कनक्लूजन कढ सकते हैं। हुण उन्हें की पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन्हां विच ऐसी किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी ट्रू नहीं होगी एक एक करके चैक करते हैं। सब तो पहला उन्हें क्या बी इज़ द वाइफ ऑफ ए बी वाइफ है ए दी ये तो बिल्कुल ठीक है उन्हें नॉट ट्रू पूछा है। सैकेंड है बी हैज़ अ डॉटर बी दी डॉटर है बिल्कुल कौन है वाई। सो ये भी स्टेटमेंट 3 है सॉरी सही है। और तो बाद उन्हें की किया एक्स इज़ द सन ऑफ ए उन्हें क्या कि जिहड़ा एक्स है वो सन है ए दा ठीक है। नैक्सट स्टेटमेंट के वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड वाई सिस्टर है जेड दी ये भी ठीक है। हुण देखो जी सी स्टेटमेंट है वो रोंग क्यों है इत्थे रोंग स्टेटमेंट पूछे क्यों रोंग है बिकॉज आपां नूं नहीं पता कि जिहड़ा एक्स है वो बॉय है या गर्ल है ओके। बिकॉज आपां नूं क्वेश्चन कुछ नहीं गिवन आपां नूं ये तो देता कि जिहड़ी वाई वो सिस्टर है एक्स ते जेड दी बट अपने कोल ये कुछ नहीं पता कि एक्स ते जेड दा जेंडर की है मेल है फीमेल है वी डोंट नो इसलिए सी जिहड़ा स्टेटमेंट है वो गलत है ओके। दैन नैक्सट क्वेश्चन मैथमैटिकल ऑपरेशन चैप्टर नाल बिलोंग करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि प्लस डिवीजन ਲਈ स्टैंड करता है। सो प्लस का मतलब की है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का मतलब की है मीनस एक्स का मतलब की है एडिशन ओके। दैन माइनस का मतलब की है मल्टीप्लीकेशन ते
डिवीजन सिंबल का मतलब की है सबट्रैक्शन। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट, इन्हां विच किहड़ी स्टेटमेंट सही है। ओके हुण एक एक करके चैक करते हैं। सब तो पहला अपने कोल की है 36 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 20। ओके हुण 36 क्रॉस की बजाय प्लस लगाना है, सो प्लस 6 प्लस की बजाय डिवीजन 7। ओके मल्टीप्लाई की जगह पर आप यूज़ करना है प्लस 2 माइनस की जगह पर इंटू 6 इक्वल्स टू 20। सो हुण बॉड मास लगावांगे, मतलब की करांगे 36 प्लस 6 डिवाइड बाय 7 प्लस 2 इंटू 6 ओके इक्वल्स 20। देखो हुण ये फ्रैक्शन च बन गया, तो इत्थों ये देख सकते हैं आप कि 20 दे इक्वल नहीं हो सकता। ओके सो ये स्टेटमेंट नूं हले छड्ड दिंदे कि ट्रू नहीं है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट देखो, ये बेसिकली अपने को की गिवन है 36 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 24। ओके हुण 36 प्लस की बजाय डिवीजन लगाना है 6 माइनस की बजाय मल्टीप्लीकेशन। ओके 3 इंटू की बजाय प्लस 5 माइनस की बजाय मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल्स टू देखते हैं हुण इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं। सॉरी इत्थे मल्टीप्लाई का निशान आऊगा। सो 36 नूं डिवाइड किया 6 नाल ओके इंटू 3 प्लस इत्थे नूं मल्टीप्लाई कर दो 15 आ गया। सो 6 का 36 हुंदा है, इहनूं जो सॉल्व किया कितना आया 18 प्लस 15। सो 18 प्लस 15 किहदे इक्वल होगा 33 दे। ओके बट अपने को इत्थे 24 गिवन है, सो ये गलत है, तो हले आप ए भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो गलत है। उस तो बाद हुण सी स्टेटमेंट चैक करते हैं, ये की गिवन है 36 मल्टीप्लाई की बजाय आप इत्थे प्लस लिख लें 6 प्लस की बजाय डिवीजन लिखना है 3 ठीक है इंटू की बजाय की लिखना है मीनस क्रॉस की बजाय की लिखना है प्लस 5 तो माइनस की बजाय की लिखना है मल्टीप्लीकेशन। ओके सो 3 हुण इहनूं सॉल्व करो, किवें करोगे बॉड मास लगाओ 36 प्लस 6 डिवाइड बाय 3 प्लस इत्थे मल्टीप्लाई कर लो 15 आ गया, तो इत्थे कितना होगा 2। ओके इनू जो प्लस किया कितना होया 38 प्लस 15 सो 8 प्लस 5 कितना हो गया 3 अपन इत्थे 45 गिवन है। सो पता लग रहा है कि ये गलत ही है। ठीक है सो इत्थों भी तुसी कह सकते हो कि डी ऑप्शन सही है। एक बार डी नू चैक कर लें। इत्थे अपने को की गिवन है 36 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 ओके इक्वल होना चाहिए 74 दे। सो 36 ने एवें लिख लिया, माइनस नू आप इंटू नाल रिप्लेस करांगे 6 ठीक है प्लस नू डिवीजन साइन नाल 3 मल्टीप्लीकेशन नू प्लस नाल ते प्लस नू आप डिवीजन नाल करांगे। ओके सो सब तो पहला बॉड मास लगाना है। सो 6 डिवाइड बाय 3 आ जाऊगा तो 5 डिवाइड बाय 3 आ जाऊगा। ओके सो इत्थे इनू कट कर दो कितना आया 2 ठीक। हुण देखो चलो इनू सॉल्व करते हैं। 36 नू 2 नाल मल्टीप्लाई किया तो कितना होंदा 72 प्लस 5 नू जो 3 नाल डिवाइड करोगे तो कितना होगा 3 1 जा 3 20 ओके 0.6 36 18 मीनस 1.66 आ जाऊगा, तो उन्होंने आप 2 के बराबर बोल सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि 5 डिवाइड बाय 3 नूं आप लिख सकते हैं 2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है तो 72 प्लस 2 कितना हो गया 74। हुण देखो आपां नूं पता लग गया कि डी आंसर है। हुण फस्ट जिहड़ा अपने कोल ऑप्शन सी इहनूं भी आपां जदों फ्रैक्शन च आ गए सी छड्डता सी, उहनूं आपां एक होर तरीके नाल भी सोच सकते हैं। देखो उरे क्या आ गया सब तो पहली टर्म 36 के विच आपां कुछ टर्म्स प्लस कर रहे हैं तो इक्वल किहदे होना चाहिए 20 दे, बट उरे किते माइनस तो नज़र नहीं आ रहा मीनस ये सारी टर्म्स ये विच ऐड ही होणगियां। सो जिहड़ी ये चीज़ है इधर वाली अगर आप कहिए लैफ्ट हैंड साइड वाली वो हमेशा बड़ी रहूगी राइट हैंड साइड तो मीनस 20 तो हमेशा लैफ्ट हैंड साइड बड़ी आऊगी। ओके सो इस करके भी आप इहनूं रिजैक्ट कर सकते हैं। हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये अपने को क्या गया कि 7 स्टूडेंट्स हैं ABCDEFG वो एक रो दे विच बैठे हुए ने ते कुछ कंडीशंस गिवन है। ओके हुण सब तो पहला तो आप इत्थे 7 लाइन ड्रॉ करांगे 1 2 3 4 5 6 7। हुण सब तो पहला जिहड़ी कंडीशंस दित्ते हुए ने ना उन्होंने साइड ते लिख लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ C ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ D, C A ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। E ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ G, ਜੋ E ਹੈ ਉਹ F ਤੇ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ
एंड बी इज़ बिटवीन डी एंड एफ। हुण देखो डी ते एफ मीनस ये वाली सिचुएशन सॉरी ये जो जी अपने को दो कंडीशनस गिवन ने उहदे नाल थर्ड कंडीशन ही जुड़ी हुई है। मीनस डी उरे है, डी तो बाद कौन आऊगा बी, ते बी तो बाद कौन आऊगा एफ, बिकॉज बी जिहड़ा वो डी ते एफ दे विच है। ए एंड जी आर एट टू एंड्स, तो अपने को नैक्सट तो की पता लग गया कि जिहड़े ए ते जी है दो एंड्स ते, एवें भी हो सकता है या फिर इस तरीके नाल भी हो सकती है। आप दोनों केस लैके चल रहे हैं। तो उन्हें पूछा कि डी जिहड़ा है वो किहड़े दो स्टूडेंट्स दे विच बैठा होया है। ओके, हुण अगर आप इधरले कॉर्नर ते ए नूं लैके चलते हैं, ठीक है, तो अगर आप आई वाली चीज़ अज्यूम करिए कि जो सी है वो ए ते डी दे विच है, तो डी ते एफ दे विच कौन है बी। ओके, तो इत्थे आऊगा ई। सो एक ए वाला केस हो गया, या फिर अगर इधर ए है तो कुछ इस तरीके का केस होगा ए सी डी बी एफ ई जी। ओके, मीनस आ दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वेश्चन की पूछा है कि डी जो है वो किन्ना दोनों दे विच बैठा है। देखो डी किदे विच है सी ते बी। ओके, तो इत्थे भी अगर आप डी देखिए किदे विच है सी ते बी। सो इसका आंसर क्या होगा ए। आई होप थोड़ा समझ आ गया। ये अपने को बेसिकली 4 कंडीशनस गिवन सी। पहला आपने 2 कंडीशन देख लिया सी लिख के, वो तो आपको कुछ पता नहीं लग्या कि इन्हों की अरेंजमेंट किमें होगी। बट जो ही आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी कि बी जो है वो डी ते एफ के उदों थोड़ी सिचुएशन अपने को क्लीयर होने लग गई कि किस तरीके नाल वो अरेंज होए हुए ने। ओके, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो। हुण देखो जिहड़े इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो मिल जूगी चैनल के उपर पजल चैप्टर के सिटिंग अरेंजमेंट करके रीजनिंग की जी प्लेलिस्ट है वो जिन्नियां भी वीडियोज़ हैं सारिया देख लो, थोड़ी रीजनिंग के काफ़ी कंसैप्ट्स क्लीयर हो जाएंगे। ओके, सो नैक्सट अपने को क्वेश्चन क्या होया, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। अगर फर्स्ट फिगर देखो जो डार्क वाला पोर्शन है तो सर्कल है ऑपोजिट है। ओके, ये भी ऑपोजिट आ रहे हैं, सी दे विच भी ऑपोजिट आ रहे हैं, बट डी दे विच सेम लाइन ते ऑपोजिट ते नहीं है। सो केड़ा इहदे विचों डिफरेंट है डी। ओके, सो नैक्सट क्वेश्चन है तो अज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली अपने नंबर ऑफ रिक्टेंगल्स दसने फिगर दे विच किन्ने हैं। ओके, हुण एक एक करके आप काउंट करते हैं। सब तो पहला रिक्टेंगल देखो एफ डी सी, इत्थे एच। ओके, इत्थे एच है। सो सब तो पहला आ गया एफ डी सी एच। ओके, सैकेंड रिक्टेंगल केड़ा हो गया ई जे सी डी वाला। सो सैकेंड आ हो गया। ओके, थर्ड केड़ा हो गया आह वाला एफ ई जे एच। सो 3 इधरों आ गए। सिमिलरली 3 नीचे बननगे, पहला आ वाला जे के बी सी। ओके, सैकेंड केड़ा बनूगा एच सी बी ए, तो थर्ड केड़ा बनूगा एच जे के ए। ओके, सो 3 इधरों आ गए। सो 6 तो हो गए। उस तो बाद नैक्सट अगर आप रिक्टेंगल की गल करिए, आप पूरा लै लो, ठीक है, भी एक रिक्टेंगल है। सो 7। ओके, सिमिलरली आ वाला पूरा लै लो 8। हुण 9th केड़ा होगा आ वाला पूरा एफ ए बी डी। ओके, सो आ वाला पूरा रिक्टेंगल हो गया ना। सो टोटल कितने रिक्टेंगल बन गए अपने को 9। सो यही आंसर। सो अज इस वीडियो दे विच जो भी रीजनिंग नाल क्वेश्चन रिलेटेड सी ते क्वांट नाल रिलेटेड से सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप तुहानू सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो अज लई इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।